کیا پنجاب میں بھی انصاف کا راج ہوگا؟ تحریک انصاف حکومت سازی کے لیے متحرک، مزید 3 کپتان کے کھلاڑی بن گئے، سلمان نعیم، سعید الحسن اور راجہ صغیر شامل۔ صوبے میں بھی حکومت بنانا ہمارا حق ہے، مولانا فضل الرحمان حلف نہ اٹھانے کا فیصلہ واپس لے لیں، نعیم الحق کا مشورہ۔ میں خاص طور پہ مولانا فضل الرحمان کا نام لینا چاہتا ہوں کہ وہ بڑی پارٹیوں کی طرح ایک مثبت رویہ اختیار کریں، قومی اسمبلی کے بائیکاٹ یا حلف جو رسم حلف ہے اس کا بائیکاٹ کرنے کا نہ سوچیں۔ تخت پنجاب کے لیے جوڑ توڑ عروج پر، لاہور میں شہباز شریف کی زیر صدارت اجلاس، اسلام آباد میں پی پی رہنماؤں نے سر جوڑے، دیگر پارٹیوں سے رابطوں پر غور، مولانا فضل الرحمان نے بھی دارالحکومت میں بیٹھک لگائی، آل پارٹیز کانفرنس کے فیصلوں پر غور۔ دھاندلی کے ذمہ داروں کو انجام تک پہنچائیں گے، عوامی مینڈیٹ چوری کیا گیا، مولانا فضل الرحمان کی گھن گرج، الیکشن مسترد کرنے پر یوسف گیلانی سے اظہار تشکر، اسمبلی میں جانے یا نہ جانے پر مشاورت کل دوبارہ ہوگی، اپوزیشن حکومت بنائے گی، صحافی کا سوال، آپ کے منہ میں گھی شکر، مولانا کا جواب۔ اسلام آباد میں پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے وفد کی ملاقات، انتخابی نتائج سمیت دیگر سیاسی امور پر تبادلہ خیال، پارلیمنٹ کا فورم چھوڑنا نہیں چاہیے، دھاندلی کرنے والوں کو بے نقاب کریں گے، الیکشن کمیشن ناکام ہو چکا، خورشید شاہ اور فرحت اللہ بابر کی میڈیا سے گفتگو۔ تحریک انصاف سے غیر مشروط اتحاد نہیں ہوگا، قاف لیگ کا اعلان، اسلام آباد میں بیٹھک، چودھری برادران کل کپتان سے ملاقات میں مطالبات سامنے رکھیں گے۔ سابق کرکٹرز کی بنی گالا میں چیئرمین تحریک انصاف سے ملاقات، انتخابات میں کامیابی پر مبارکباد، عمران خان نے جو کہا وہ ضرور کر کے دکھائیں گے، انضمام الحق کو یقین، مشتاق احمد نے کہا قوم سپورٹ کرے، عمران ملک کی خدمت کریں گے۔ افغان صدر اشرف غنی کا عمران خان کو فون، الیکشن جیتنے پر کابل کا دورہ کرنے کی دعوت بھی دے ڈالی، عمران کا اظہار تشکر، دعوت قبول کر لی۔ نواز شریف کو اڈیالہ جیل سے پیمز اسپتال منتقل کر دیا گیا، سینے اور بازو میں درد، ای سی جی غیر تسلی بخش، خون میں کلاٹس کی نشاندہی، ڈاکٹرز کے بعد ذاتی معالج ڈاکٹر عدنان نے بھی اسپتال منتقلی کی تجویز دی تھی، عمران خان کی جانب سے جلد صحت یابی کی دعا۔ 40 پولنگ اسٹیشن سے زائد ایسے تھے جن پہ رزلٹ دینا ڈینائی کیا گیا، اور میں نے فوری طور پہ ریٹرننگ افسر کو مطلع کیا، آر او کو، اور انہیں بتایا، پولنگ اسٹیشنز کے نمبر بتائے کہ یہاں رزلٹ کی فارم 45 نہیں دی جا رہی۔ سعد رفیق نے پھر تنقید کی ٹرین چلا دی، عمران کو جتوانے کے لیے میرا حلقہ تقسیم کر دیا گیا، پولنگ اسٹیشن کم تھے، ہزاروں افراد ووٹ نہ ڈال سکے، سعد رفیق کے شکوے، نتائج میں تاخیر پر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس نہیں لیا، فارم 45 بھی نہیں دیا۔ بہت شدید تحفظات ہیں میرے، اس کو ریکارڈ پر لانا بہت ضروری ہے، وہ ہیں تحفظات الیکشن کے حوالے سے، الیکشن 2018 جو ہوا ہے، اور میرا خیال ہے 4 دن گزرنے کے باوجود آج تک کمپلیٹ ہی نہیں ہوا۔ ریزلٹ ٹرانسمیشن سسٹم بیٹھا یا بٹھایا گیا، ووٹوں کی گنتی سے پہلے پولنگ ایجنٹس کو کیوں نکالا، گورنر سندھ کے تابڑ توڑ سوالات، مستعفی ہو گئے، الیکشن میں سنگین دھاندلی کا الزام، کہا حلقے کھلوانا عمران خان کی ذمہ داری ہے۔ شہباز شریف کی این 249 کراچی میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی کی درخواست، بیرسٹر ظفر اللہ کہتے ہیں فاتح امیدوار کے صرف 700 ووٹ زائد ہیں، فارم 45 میں شہباز شریف کا نام ہی نہیں، این 73 سیالکوٹ میں ووٹوں کی دوبارہ گنتی مکمل، خواجہ آصف پھر فاتح قرار۔ شام تک جیت رہا تھا، صبح نتیجہ تبدیل کر دیا گیا، رہنما ایم کیو ایم فاروق ستار کا الزام، این اے 245 اور 47 میں دوبارہ گنتی کی درخواست دے دی،
गिनती के वक्त पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकालने का शिकवा। कराची में धांधली हुई, पीपल्स पार्टी रहनुमा सईद गनी को भी तहफ्फुजात। कय्यूमाबाद की कचरा कुंडी से बैलेट पेपर्स मिलने का दावा कर दिया। इलेक्शन ट्रिब्यूनल जाने का ऐलान। NA 248 पर वोटों की दोबारा गिनती मुकम्मल। अब्दुल कादिर पटेल की फतह बरकरार। हमारे एतराजात नहीं सुने जा रहे, साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी के साहबजादों का शिकवा। NA 154 और NA 157 में वोटों की दोबारा गिनती का बॉयकॉट कर दिया। अख्तर मेंगल ने भी इंतखाबात पर इंक्वायरी कमीशन की हिमायत कर दी। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का मैंडेट चुराए जाने का इल्जाम लगा दिया। कहा मुल्क का वाहिद इलेक्शन था जहां 72 घंटों तक नताइज रोके रखे गए। इलेक्शन मुतनाज़े बनाने के पीछे कौन? लाहौर में इंतखाबात से एक दिन पहले ढेरों शनाख्ती कार्ड्स बरामद। सियालकोट में बैलेट बॉक्स मिले। कराची में जले हुए बैलेट पेपर सामने आए। इलेक्शन कमीशन ने ताहाल कोई कार्रवाई नहीं की। कौन पिएगा बलूचिस्तान की वजारत आला का जाम? सदर बलूचिस्तान अवामी पार्टी जाम कमाल का नाम फाइनल कर लिया गया। इमरान खान ने भी साथ देने का इशारा दे दिया। अब्दुल कुद्दूस बिजिंजो को सीनियर वजीर बनाया जाएगा। बलूचिस्तान में अवामी नेशनल पार्टी और बलूचिस्तान अवामी पार्टी का इत्तेहाद। जमहूरी लोग हैं, मुल्क में जमहूरी निज़ाम ही देखना चाहते हैं। रहनुमाओं की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस। गुज़िश्ता हुकूमत पर CPAC में सूबे को नजरअंदाज करने का इल्जाम लगा दिया। कराची में इलेक्शन के दौरान कमाल हो गया। मुस्तफा कमाल समेत पाक सरजमीन पार्टी का कोई उम्मीदवार ना जीत सका। पार्टी कुल 1,29,000 वोट ही ले सकी। ऑरेंज लाइन और दीगर मंसूबे एक ही ठेकेदार को दिए गए। कोई पैसे वापस नहीं करेगा तो हम निकलवाएंगे। चीफ जस्टिस का इंतबाह। कहा अवाम के टैक्स के पैसे का किसी को ख्याल नहीं। पंजाब कंपनीज स्कैंडल नैब को भिजवा दिया। 10 दिन में रिपोर्ट तलब। वाइस चांसलर लाहौर कॉलेज फॉर विमेन यूनिवर्सिटी डॉक्टर उज़मा को हटाने का हुक्म। सुप्रीम कोर्ट ने सीनियर प्रोफेसर को कायम मकाम की जिम्मेदारी सौंपने की हिदायत कर दी। अल्लामा इकबाल यूनिवर्सिटी में डीन की तकर्री से मुताल्लिक रिपोर्ट भी तलब कर ली। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में बारिश से तबाही। सरगोधा और हाफिजाबाद में मकान की छत गिरने से 5 अफराद जाँ बहक। स्कर्दू तोटमक में सैलाब। मुतादिद पुल बह गए। फसलें तबाह। निज़ाम जिंदगी दरहम बरहम। आलमी शोहरत याफ्ता कुहपैमा लिटिल करीम की पोतियों का कारनामा। 3 लड़कियों ने तारीख ही रकम कर दी। 6080 मीटर बुलंद मंगली सर चोटी सर कर ली। इजरायली मजालिम के खिलाफ डट जाने वाली फलस्तीनी लड़की को रिहा कर दिया गया। अहद तमीमी ने जालिम इजरायली फौजी को थप्पड़ मारा था। तैयार कर ली है किसे कौन सा ओहदा चाहिए और कौन सी वजारत। तहरीक इंसाफ के लिए सबके मुतालिबात मानना चैलेंज बन गया है। तख्ते पंजाब पर कौन होगा बराजमान? PTI का जोड़ तोड़ जोरों पर। मुलाकातें, टेलीफोनिक राब्ते तेज हो गए। लाहौर में PTI क़यादत काफ लीग की क़यादत से मिली। ज़राए के मुताबिक चौधरी बरादरान ने अहम शराइत भी रख दी। मुतालबात सुने भी और मानने की भी हामी भर ली। आज़ाद उम्मीदवार भी अपनी शराइत बनवाने की कोशिशों में जुड़े हैं। वजारतों, पार्लिमानी सेक्रेटरीज और दीगर आला ओहदों के मुतालबे होने लगे। आज़ाद अरकान असम्बली की अक्सरियत का झुकाव बनी गाला की तरफ है। पंजाब असम्बली के 6 आज़ाद अरकान ने कप्तान को हिमायत की यकीन दहानी करवा दी। जोड़ तोड़ कीमत में PTI को इस वक्त कड़े चैलेंज का सामना है।
नाज़रीन, तहरीक इंसाफ ने शहर इक़्तिदार और तख्ते लाहौर पर कामयाबी के झंडे गाड़ लिए। 131 अरकान की हिमायत के साथ नून लीग की अक्सरियत ख़त्म करने का दावा किया जा रहा है। मरकज में शिकस्त के बाद कोई नहीं जो हो लीगी नाव में सवार। सियासी मुसाफिर पीटीआई काफले में शामिल। शाह महमूद कुरैशी को शिकस्त देने वाले शेख सलमान ने एक बार फिर तहरीक इंसाफ ज्वाइन कर ली। जी, मैं इलेक्शन से पहले भी पीटीआई का हिस्सा था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे टिकट नहीं मिल सकी और मैंने आज़ाद हैसियत में कॉन्टेस्ट किया और अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई। मैं अपने घर में वापस आया हूँ और अपने घर में वापस आने के लिए किसी शर्त की ज़रूरत नहीं होती। मैं गैर मशरूत तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शामिल हुआ हूँ। हल्का PP 7 और PP 46 के फातेह अरकान राजा सगीर और सईदुल हसन भी PTI के हो गए। 3 मजीद अरकान की शमूलियत के बाद पंजाब में ताकत का पलड़ा PTI के हक में झुक गया। 131 अरकान के साथ PTI पंजाब की सबसे बड़ी जमात बनकर उभर रही है और लाहौर का तख्त लीगी क़यादत के हाथों से फिसल रहा है। अब आपको बताएं कि अफगान सदर अशरफ गनी ने इमरान खान को टेलीफोन करके इंतखाबात में कामयाबी पर मुबारकबाद दी है और दौरा अफगानिस्तान की दावत भी दे डाली। अफगान सदर ने कहा कि इमरान खान अफगानिस्तान में भी निहायत मकबूल और नौजवानों के हीरो हैं। अफगान सदर के दौरे काबुल की दावत पर इमरान खान ने शुक्रिया के साथ कबूल करते हुए कहा कि वो हुकूमत साजी का अमल मुकम्मल होते ही अफगानिस्तान के दौरे पर जरूर आएंगे। न्यूज़ शो में एक अच्छी खबर शामिल करते हैं। तहरीक इंसाफ ने सियासत में नई रिवायत कायम की है। कराची से कामयाब PTI उम्मीदवार अरसलान ताज हारने वाले उम्मीदवार के घर पहुंच गए और उनसे मुलाकात की। हारने वाले उम्मीदवार सैयद कुतुब ने भी बड़े दिल का मुजाहरा किया और कामयाब उम्मीदवार को मुबारकबाद के साथ साथ मिठाई भी खिलाई। हम आपको आगाह कर रहे हैं, एक अच्छी खबर हमारे पास पहुंची है। तहरीक इंसाफ ने एक अच्छी रिवायत डाली है सियासत में, ये नई रिवायत है। कराची में सूरत हाल ये देखने में आ रही है कि कामयाब PTI उम्मीदवार अरसलान ताज हारने वाले उम्मीदवार के घर पहुंचे, उनसे मुलाकात की और वहां पर उनका शानदार इस्तकबाल हुआ और मिठाई भी खिलाई गई। पेशावर के अवाम को तहरीक इंसाफ से बहुत सी उम्मीदें हो गई हैं। शहरियों ने इमरान खान को क्या मशवरे दिए हैं, आपके साथ भी शेयर करते हैं। पेट्रोल सस्ती होनी चाहिए, डॉलर हमारा सस्ती होनी चाहिए और ये सब कुछ दुकानों में बाज़ारों में सब कुछ महंगे होते हैं। हमें बहुत परेशानियाँ होती है। इमरान खान ने जो तकरीर की है उसमें यही कहा है कि हम दूसरे ममालिक से भी बेहतर करेंगे, तलकात भी बेहतर करेंगे और पहले से बेहतर हालात करेंगे। अभी अल्लाह दे बेहतर जानता है वो क्या करते हैं। इमरान खान को ऐसे इक़दाम करना चाहिए कि KP में जितने प्रोजेक्ट्स उनने शुरू किए तो पहले तो उनको पूरा करना चाहिए। मेरे ख्याल में सबसे तो पहले उनको मिनिस्ट्री जो है ना तो वो ईमानदार लोगों को देने चाहिए, जो एक्सपर्ट्स हो अपनी फील्ड में, जो महारत रखते हों। बात करेंगे अवामी नेशनल पार्टी की, जिसने बलूचिस्तान अवामी पार्टी की हिमायत कर दी। दोनों जमातों के रहनुमाओं ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस की। रहनुमा ANP कहते हैं BAP बलूचिस्तान की सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी। BAP रहनुमा जाम कमाल ने हिमायत पर ANP का शुक्रिया अदा किया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी इस सूबे की सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी हम सबको देखने को मिल रही है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। हमारे बुजुर्गों ने, डॉक्टर साहब ने, अरबाब साहब ने ये फैसला किया हमें बलूचिस्तान अवामी पार्टी को सपोर्ट देना चाहिए। पार्टी के फैसले के मुताबिक हम बलूचिस्तान अवामी पार्टी को मुकम्मल तौर पर सपोर्ट का ऐलान करते हैं। बहुत मशकूर हैं जनाब असगर सईद साहब का, ज़मर खान साहब का, उनके मेम्बरान का। ये बलूचिस्तान अवामी पार्टी के लिए एक बहुत इंतहाई खुशी का मकाम भी है। और बात करेंगे नून लीग और पीपल्स पार्टी की, जिन्होंने बॉयकॉट ना करने और मिलकर काम करने का फैसला किया है। मुश्तरका इजलास के बाद फरतुल्लाह बाबर का कहना है कि ना सिर्फ पार्लियामेंट में जाएंगे बल्कि MMA और दीगर जमातों को भी हल्फ उठाने पर राजी कर लेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी एक पेज पर हल्फ उठाकर ऐवान में बैठेंगे, मिलकर धांधली की साजिश बेनकाब करेंगे। MMA को भी हल्फ उठाने पर राजी करने का फैसला। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और नून लीग का इजलास हुआ। यूसुफ रजा गिलानी, खुर्शीद शाह, अयाज सादिक, शाहिद खगान अब्बासी और दीगर शरीक हुए। इजलास के बाद फरतुल्लाह बाबर ने बताया कि दोनों जमातों ने इत्तेफाक किया कि इंतखाबात में धांधली हुई है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर फौरी तौर पर मुस्ताफी हो जाएं।
उनका कहना था कि पार्लियामेंट का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ा जाएगा, बल्कि MMA और दीगर जमातों को भी हल्फ उठाने पर राजी करने की कोशिश करेंगे। इससे कबल पीपल्स पार्टी और नून लीग के अलग अलग इजलास भी हुए, जिनमें इलेक्शन में मुबैना धांधली के बाद सियासी लाहे अमल अपनाने और हम ख्याल जमातों के साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक किया गया। नाज़रीन, मुस्लिम लीग नवाज का मुशावरती इजलास हुआ है और इसमें यह फैसला किया गया है कि पार्टी इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनेगी। इसी बारे में मजीद जानेंगे। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मौजूद हैं। कमर जब्बार, ये इंतहाई अहम इजलास था, इसमें फैसला किया जाना था कि पार्टी हलफ उठाएगी नहीं उठाएगी, और साथ ही साथ ये भी कहा जा रहा है कि इंतशार की जो सियासत है उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। तो फिर मैसेज क्या आया? मुस्लिम लीग नवाज की तरफ से जो आज इजलास मुंतखब किया गया, इसमें ये तो एक चीज़ तो वाज़ेह सामने आ गई है कि अब अपोजिशन में मुस्लिम लीग नवाज ने बैठने का फैसला कर लिया है और शहबाज शरीफ ने बाकायदा तौर पर अरकान जो मुंतखब हुए हैं उनको इत्तेमाद में लिया और उनका यह कहना था कि हम किसी इंतशार की सियासत का हिस्सा नहीं बनेंगे और अवामी हकूक़ की जंग लड़ते रहेंगे। उनका यह भी कहना था कि मौजूदा हालात में एक तूफ़ान से निकल कर मुस्लिम लीग सामने आई है। जितनी भी नशिस्तें हमें मिली हैं वो जैसे भी मिली हैं, अब हमें उस पर कनात करना है और असम्बलियों में जाकर अपने हक़ का दिफा करना है। तमाम अरकान ने शहबाज शरीफ की इस बात को इंडोर्स किया और उनका यह कहना था कि वो भी कौमी असम्बली में जाएंगे, अपने अपने हल उठाएंगे। लेकिन पंजाब की सियासत का रुख अभी तब्दील नहीं हुआ और शहबाज शरीफ अब भी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास से खिताब कर रहे हैं और पंजाब में हुकूमत साजी के हवाले से जोड़ तोड़ का एक नया सिलसिला कल से शहबाज शरीफ शुरू करेंगे और जो अभी नाराज़ अरकान जिनको टिकट नहीं दिए गए थे उनसे दोबारा राब्ते किए जाएंगे और कोशिश की जाएगी कि पंजाब में भी ये अपनी पोजीशन मुस्तहकम कर सकें। जी बहुत कमर जब्बार डिटेल्स के लिए। अब आपको बताएं कि आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कामयाबी पर इमरान खान के पुराने साथी भी बहुत खुश हैं। साबिक टेस्ट क्रिकेटर इंज़मामुल हक और मुश्ताक अहमद की इमरान खान से बनी गाला में मुलाकात हुई। दोनों ने इमरान खान की नई जिम्मेदारी के लिए नए ख्वाहिशात का इजहार किया और उम्मीद जाहिर की कि इमरान खान अपनी अनथक मेहनत से पाकिस्तान को आगे लेकर जाएंगे। और हमें एज ए क्रिकेटर बड़ी खुशी है कि जी हमारे जिनसे हमने सीखा भी, सारी चीज़ें भी की, अल्लाह ने उनको ये आला मुकाम दिया है। पिछले 22 साल की जो उनकी मेहनत है कि जी ये रंग लेके आई है कि उन्होंने गिव अप नहीं किया और इंशाल्लाह ये उम्मीद भी करने वाली ज़ात तो अल्लाह की है, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि जो इमरान भाई ने कहा है तो इंशाल्लाह उनके करने के लिए 100% जोर लगा देंगे। तो हमारी इमरान भाई के साथ दुआएं भी हैं। आने वाला वक्त जो है काफ़ी टफ है। जब इंसान जीत जाता है उसके बाद जो चैलेंजेस आते हैं उस पर हमें बीइंग नेशन सपोर्ट करने पड़ेगी और अल्लाह से दुआ मांगेंगे। अल्लाह इंशाअल्लाह ताला जो मकसद के लिए वो आए हैं उस मकसद में पूरी कौम की दुआएं उनके साथ हैं और उन मकसद में अल्लाह उनको कामयाबी दे और उनको हमकिनार करे। जैसे 87 के वर्ल्ड कप में उन्होंने हार नहीं मानी और फिर 92 का वर्ल्ड कप जीत के ले आए, शौकत खानम हॉस्पिटल बनाए, इसी तरह वो पाकिस्तान को सर्व करें। साबिक क्रिकेटर्स क्या कहते हैं ये तो आपने जाना, मजीद अहम खबरें जानिएगा इस ब्रेक के बाद। आज के साथ रहिए। वेलकम बैक अगेन। अब बात करते हैं पाक सरजमीन पार्टी की, जिसके साथ आम इंतखाबात में खास ही कमाल हो गया। मुस्तफा कमाल के दावे धरे के धरे रह गए। इलेक्शन में PSP की कोई सीट नहीं मिल सकी। वोटों के तनासुब से PSP का 16वां नंबर रहा। दावे वादे सब हवा हुए, PSP वाले देखते रह गए, निशिस्तें कोई और। PSP ने 3 हलकों से किस्मत आजमाई, लेकिन एक निशिस्त भी मुस्तफा कमाल के हाथ न आई। इंतखाबात में PSP का 16वां नंबर रहा। वोट बैंक सिर्फ 1,29,000 रहा। हमें वो भी वोट देंगे जो MQM को वोट देते थे, हमें वो भी मुहाजिर वोट देंगे जो खामोश रहते थे, किसी को वोट नहीं देते थे। और तो और MQM और TLP भी PSP से आगे रही। MQM 6 और TLP ने भी 2 निशिस्तें ले ली। इस तरह कमाल के कमाल का गुरूर सबने देख लिया। कराची ने फैसला दे दिया है कि वो किसके साथ है। हर जगह से PSP की डॉल्फिन की आवाज आ रही है, आ रही है, नहीं आ रही है।
नाज़रीन, आम इंतखाबात में चैलेंज किए गए हलकों में दोबारा गिनती का अमल जारी है। NA 215 सांगड़ में दोबारा गिनती के बावजूद पीपल्स पार्टी उम्मीदवार कामयाब करार पाए, जबकि PP 167 में भी लीगी उम्मीदवार की दरखास्त बेकार गई। एक एक वोट फिर गिन लिया, मगर नतीजा ना बदल सका। दोबारा गिनती की दरखास्त ने उम्मीदवारों को दोबारा हरा दिया। PP 167 लाहौर में लीगी उम्मीदवार की दरखास्त बेकार गई। PTI के नजीब चौहान 40,680 वोट लेकर फिर से कामयाब। नून लीगी उम्मीदवार मियां सलीम के 38,440 वोट निकले। सांगड़ में भी GDA उम्मीदवार की दरखास्त किस्मत न बदल पाई। NA 215 में PP उम्मीदवार की कामयाबी बरकरार। GDA के हाजी खुदाबख्श 77,322 वोट ले सके। हारने वाले उम्मीदवार मुसलसल वोटों की दोबारा गिनती का मुतालबा कर रहे हैं, मगर अब तक दोबारा गिनती की दरखास्त कोई नया नतीजा ना निकाल सकी। मुल्क में आम इंतखाबात का जोर तो तहरीक इंसाफ की जीत के साथ ही खत्म हो चुका है, मगर PTI की जीत पर नून लीग की जानिब से धांधली का शोर जारी है। ख्वाजा साद रफीक ने इल्जाम लगाया है कि उनका हल्का इमरान खान के लिए 3 हल्कों में तकसीम किया गया। इलेक्शन तो खत्म हो चुके, मगर सियासत में टेंशन खत्म ना हो सकी। कप्तान की जीत लीगियों को हजम ना हो सकी। ख्वाजा साद रफीक ने धांधली का शोर मचा दिया। जो 40 पोलिंग स्टेशन से जायद ऐसे थे जिन पे रिजल्ट देना डिनाई किया गया, और मैंने फौरी तौर पे रिटर्निंग अफसर को मतला किया, RO को, और उन्हें बताया, पोलिंग स्टेशन के नंबर बताए कि यहाँ रिजल्ट की फॉर्म 45 नहीं दी जा रही। लीगी रहनुमा के इल्जामात को PTI ने यकसर मुस्तरद कर दिया। नईमुल हक कहते हैं इंतखाबात में शिकस्त खाने वाले मनफी सियासत कर रहे हैं। कुछ लोग अभी तक, जैसे कि मैंने कल भी कहा था, मनफी सियासत कर रहे हैं। बहुत बुरी शिकस्त हुई है। मैं खास तौर पे मौलाना फजलुर रहमान का नाम लेना चाहता हूं कि वो बड़ी पार्टियों की तरह एक मस्बत रवैया अख्तियार करें। कौमी असम्बली के बॉयकॉट या जो रस्म हल्फ है उसका बॉयकॉट करने का ना सोचें। नईमुल हक का कहना था इंतखाबात में तहरीक इंसाफ मुल्क की बड़ी जमात बनकर उभरी है, इसीलिए मरकज और पंजाब में हुकूमत बनाने का हक रखते हैं। नाज़रीन, सरगोधा में वोटों की गिनती के दौरान दरवाज़ा तोड़कर जिला कचहरी में ज़बरदस्ती दाखिल होने वाले नून लीग के रुकने कौमी असम्बली डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी और साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके 20 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। हल्का NA 91 में PTI के उम्मीदवार आमिर सुल्तान चीमा की दरख्वास्त पर वोटों की दोबारा गिनती जारी थी कि जिला कचहरी में सैकड़ों कारकुनों के हमरा नून लीग के जीतने वाले उम्मीदवार डॉक्टर जुल्फ़िकार भट्टी मेन गेट तोड़कर सेशन कोर्ट के अंदर दाखिल हो गए और मर्जी का नतीजा मिलने तक जिला कचहरी और मुलाजिमीन को यरगमाल बनाए रखने की धमकी दी। पुलिस ने एक्शन लेते हुए 9 मुंतखब रुकन कौमी असम्बली जुल्फ़िकार भट्टी, उनके भाई सरफराज भट्टी और बेटे समेत 23 नामजद और 50 से ज्यादा नामालूम मुलजिमान के खिलाफ इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट समेत 8 मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। FIR के मुताबिक जुल्फ़िकार भट्टी ने कारकुनों को इंतजामिया और पुलिस के खिलाफ उकसाया और तोड़फोड़ की। वाजिया रहे दोबारा गिनती में भी